बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बाखैरियत होंगे और स्टडी पे भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे, क्योंकि इसके बगैर आपको इस सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं होगी। नाउ वी विल डिस्कस दी previous lecture items. We have discussed in previous lecture various points like DuPont return on assets analysis, interpretation through DuPont analysis, operating income margin, and we have discussed operating assets turnover, return on operating assets, and we have discussed the sales to fixed assets of the businesses, and we have solved various practical exercises. Now today we will discuss the various topics. Today we will discuss the return on investment, return on equity, and return on common equity, and we will discuss the relationship between profitability ratios, and we will discuss the gross profit margin, trends in profitability, segment reporting, and we will discuss the gains and losses that bypass the income statement of the business. Then we will discuss the interim reports of the business. At the end, we will solve the various practical problems. Now, dear students, I would like to discuss the all points one by one. First of all, I will discuss the return on investment. Return on investment क्या है? The return on investment applied to ratios measuring the income earned on the invested capital of the owners. Return on investment means these types of measures are widely used to evaluate enterprise performance and measures the earnings on investment and indicates how well the firm utilizes its assets base. And return on investment evaluate enterprise performance. And dear students, what is the formula for the calculation of return on investment? Formula will be net income before minority share of earnings and non-recurring items. If you remember that, we have discussed in detail about the net income before minority share of earnings and non-recurring items plus interest expense minus 1 minus tax rate multiplied by interest expense, and it will be divided by the average long-term liabilities plus equity. यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और इक्विटी को प्लस करके हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे नेट अर्निंग्स को। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर और भी बहुत सारी अहम नुकात हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट measures the ability to reward investors and to attract providers of future funds, and evaluates the earnings performance without regard to financing sources. तो डियर स्टूडेंट, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी कि स्टॉक होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट है और कितने % बेनिफिट है
वो हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट द रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to define the return on total equity. The return on total equity means measures the return to both common and preferred stockholders. तो return on equity हम preferred stockholders और common stockholders दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। In case of return on equity, we need to adjust something like adjustments for redeemable preferred stocks deducted from the return on equity, total equity. Dividend will be deducted from the total equity from the net income of the business minus stock value from total equity will be deducted. Stock value किसकी? Stock value of the redeemable preferred stock. जो redeemable preferred stock की वैल्यू होगी, ठीक है, वो भी हम माइनस कर देंगे किस में से? टोटल इक्विटी ऑफ द बिजनेस। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी? फार्मूला विल बी द सेम, सिंपल. First of all, we will write net income before non-recurring items of the business minus dividends on redeemable preferred stock. क्या करेंगे कि net income before non-recurring items लिख के माइनस कर देंगे उसमें से dividends on redeemable preferred stocks divided by average total equity. तो हम फाइंड आउट कर लेंगे रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी ऑफ द बिजनेस. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी. व्हाट इज रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी? दिस रेशियो measures the return to the common stockholders only. In this ratio, preferred stockholders return will not be included. Only this ratio is related to the common stockholders return. And in case of common equity, total we will calculate the total stockholders equity. उसमें से माइनस कर देंगे प्रेफर्ड कैपिटल, यानी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का शेयर माइनस कर देंगे और लेस कर देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिपोर्टेड एज इक्विटी, यानी कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर होगा वो भी हम माइनस कर देंगे. फार्मूला विल बी दी नेट इनकम बिफोर नॉन रिकरिंग आइटम्स माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन इक्विटी. तो फार्मूला क्या होगा कि नेट इनकम में से आपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल इक्विटी. डियर स्टूडेंट्स, if you can see, one table is given in front of you that shows the relationship between profitability ratios. First column shows that rate of return, कि हमने rate of return किस किस पे find out करना है. We need to find out the rate of return on assets. We need to find out the rate of return on investment and rate of return on total equity, and we need to find out the rate of return on total common equity. First column ये था. Dear students, second column is related to the measures return to provider of all funds. क्या मतलब कि सेकंड कॉलम हम जो मेजर क्यों करेंगे, हम मेजर्स करेंगे उसके लिए जो हमें सारे फंड प्रोवाइड करेगा. हम किसके लिए मेजर्स करेंगे? जो हमें लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करेगा, यानी कि क्रेडिटर्स के लिए. हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? फॉर इक्विटी होल्डर्स एंड कॉमन इक्विटी होल्डर्स. इक्विटी होल्डर्स में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स भी आ जाएंगे और कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी आ जाएंगे. देन थर्ड कॉलम shows that the typical result
related to the different ratios. In case of return on assets includes all assets, rate will be the less and lowest. In case of investment, higher than return on assets, relative small amount of short-term funds. In case of total equity, higher than return on investment, and in case of common equity, that will be highest. If you are comparing with the common stockholders absorb greatest degree of risk, requires the return to preferred shareholders exceed funds paid to preferred shareholders. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंपैरिजन था बिटवीन दी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑफ द बिजनेस. Dear students, now we will discuss about the gross profit margin. Already we have discussed about the gross profit margin in previous lectures. Again we will discuss in detail. You know very well what is gross profit. Gross profit means cost minus cost. या मैंने पास लिया, काट लीजिएगा. Gross. Now we will discuss the gross profit margin in detail. What is gross profit margin? Simple calculation is there. Sales minus cost of goods sold is equal to gross profit of the business. Or you can see sales minus cost of goods sold is equal to gross profit. And what are the things, what are the items will be included in the calculation of cost of goods sold? First of all, we will add up the beginning inventory of the finished goods. Then we need to add up the purchases of material. That will be cost of material or purchase available for sale. Then we will subtract the ending inventory. Net result will be the cost of goods sold. तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने सेल से माइनस किया तो हमने क्या फाइंड आउट किया? ग्रास प्रॉफिट. तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला विल बी दी ग्रास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल. तो हम ग्रास प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, व्हाई ग्रास प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन? क्वेश्चन क्या है, ग्रास प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन क्यों कर जाता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. तो मेरा ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए. इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है कि ग्रास प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्यों रिड्यूस होता है. बेसिकली देयर आर वेरियस रीजंस आर गिवन फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ द ग्रास प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. फर्स्ट रीजन, द कॉस्ट ऑफ बाइंग इन्वेंटरी हैज इंक्रीज्ड मोर रैपिडली देन हैव द सेलिंग प्राइस. यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी इंक्रीज नहीं कर रही, आपकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है मटेरियल की वो इंक्रीज कर रही, तो डेफिनेटली योर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड. अनदर आइटम इज गिवन, सेलिंग प्राइस डिक्लाइन ड्यू टू कंपटीशन. क्या मतलब? आपकी सेलिंग प्राइस डिक्रीज करनी पड़ी कंपटीशन में. मार्केट में बहुत सारे कंपेटिटर आपके बैठे हुए, तो कंपेटिटर अगर कम कीमत में बेचेंगे तो आपको भी कम पे बेचना पड़ेगा. तो योर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी reduce in this case. Now another reason we can discuss, the mix of goods has changed to include more products with lower margins. Another reason is there, theft is occurring. Theft आप समझे, अगर आपकी कोई चोरी हो जाती है तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी. If sales are not recorded, the cost of goods sold figure in relation to the sales figure is high. If inventory is being stolen, the ending inventory will be low and the cost of goods sold will be high. So in case of theft, stolen, your cost of goods sold will be high and your gross profit will be reduced. These are various reasons for the reduction of ग्रास प्रॉफिट. तो इसलिए ग्रास प्रॉफिट हमारा कम हो सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डिस्कस वेरियस
more items regarding reduction of gross profit, manager's budget, gross profit levels into their prediction of profitability कि मैनेजर ने जो बजट बनाया प्रॉफिटेबिलिटी का वो बजट सही ना बन सका, प्रेडिक्शन आपकी गलत हो गई, कीमतें बढ़ गई. यूज टू कॉस्ट कंट्रोल. व्हाट इज दिस? कि आपको कॉस्ट को कंट्रोल भी करना चाहिए कि देखें किस फैक्टर में आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उसके फैक्टरों को आप रिड्यूस करने की कोशिश करें तो आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर कर सकते हैं. एंड अदर थिंग वी कैन डिस्कस हेल्पफुल to determine inventory levels for interim statement in merchandising industry. Interim statement means you can prepare your statements on the basis of quarters. You can prepare the statements on the basis of months. You can prepare weekly. तो आप इंटरिम स्टेटमेंट्स बना के इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. इंटरिम स्टेटमेंट्स का बेनिफिट क्या है कि आपको साथ ही साथ ये पता चलना जाएगा कि आपकी कॉस्ट क्यों इंक्रीज कर रही है. तो यू आर एबल टू हैंडल द कॉस्ट वेरी वेल. ठीक है, इन केस ऑफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग इंटरिम स्टेटमेंट्स फॉर द बिजनेस. नाउ वी कैन यूज बेसिकली अनदर टेक्निक, एस्टिमेटेड इन्वेंट्री involved in insured losses. Then we can use auditors and internal revenue services to judge the accuracy of accounting system. दूसरा, हम ऑडिटर्स और एक्सपर्ट के साथ मिलके अकाउंटिंग एक्यूरेसी के बारे में भी सीख सकते हैं कि हमारा हो सकता है कि अकाउंटिंग एक्यूरेसी रिकॉर्ड जो ठीक ना हो तो भी हम ठीक कर सकते हैं. बेसिकली वी कैन टेक वेरियस measures for the improvement of gross profit. If company wants to improve the gross profit, the company must take various measures for the improvement. Dear students, what is segment reporting? Firms frequently operate in more than one line of business. क्या मतलब? Most of the time company एक से ज्यादा line of business में डील कर रही होती है, तो we need to basically control it. When a firm is diversified in this manner, यानी कि उसके पास different businesses हैं, different products हैं, तो उसमें diversified है, the results of the operations of the individual segments may vary among one another. Separate financial information is available for all segments, evaluated by the chief decision making officer. और ये आपके जितने भी वेरियस सेगमेंट की प्रोडक्ट्स होंगी वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के थ्रू उसको रेक्टिफाई और रिकंसाइल करना चाहिए, चेक होना चाहिए. एंड geographical situation will play a very vital role in this case. Geographical information means statement also requires data on foreign operations by geographical area, export sales and major customers data. Then we can earn revenue and we can concentrate on the business assets, and we need to basically focus on the major customers of the business, and we need to focus on the products and services of the business, quality of the products, quality of the services. We need to focus on these things. That is called segment reporting. Dear students, now we will discuss gain and losses from prior period adjustments. प्रायर पीरियड्स की एडजस्टमेंट आप समझते हैं, ऑलरेडी हम एडजस्टिंग इंट्रीज भी पास कर चुके हैं, तो वो भी एडजस्टमेंट आपने करंट ईयर में कर सकते हैं. देयर आर अ फ्यू गेन्स एंड लॉसेस दैट आर नॉट रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक आप ऐसी रिपोर्ट, ऐसी एडजस्टमेंट जिनको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते. तो लाइक गेन्स एंड लॉसेस from prior period adjustments, unrealized declines in the market value of the marketable securities
of the investment of the owners and foreign currency translation adjustments. फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट्स आपको पता है कि जब आप किसी फॉरेन करेंसी में डील करेंगे तो जब आप कन्वर्ट उसको रुपीस में करेंगे तो डेफिनेटली अमाउंट में फ़र्क आएगा, तो वो एडजस्टमेंट भी आपको करनी है. तो दैट इज कॉल्ड गेन एंड लॉसेस फ्रॉम प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स. एंड गेन एंड लॉसेस डायरेक्टली चार्ज टू रिटेन अर्निंग्स. लॉसेज हों या गेन्स हों, आप रिटेन अर्निंग को चार्ज कर सकते हैं. एंड change in the accounting principles of the business. Realization of net operating loss carry forward. Tax benefits from purchase subsidies. क्या मतलब? In case of company, you can get basically losses benefits. In what case? कि suppose company को loss हो गया 2013 में, तो you are allowed, यू कैन कैरी बैक, क्या आप वापस जाके अपने लॉसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कि अगर फर्ज कर लें 2012 में लॉस हुआ 5 लाख रुपए का, आपके लॉसेस 5 लाख से ज़्यादा हैं, तो आप 5 लाख का पिछले साल जाके माइनस कर देंगे तो 2012 का आपका प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा. प्रॉफिट ज़ीरो होगा तो आपकी टैक्स रिफंड क्लेम हो जाएंगे. इसी तरह अगर लॉस पूरा नहीं होता तो आप 1 साल और पीछे चले जाएं 2011 में, तो वहाँ भी जो टैक्स पे होगा वो आपका रिफंड हो जाएगा. फिर भी लॉसेस पूरे नहीं होते, यू कैन गो कैरे फॉरवर्ड. तो आप 2014, 2015, 2016 तक आने वाले सालों में भी अपने लॉस को पूरा कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज द एडजस्टमेंट. चेंज इन अकाउंटिंग एंटिटी एंड ड्यू टू चेंज इन करेक्शंस ऑफ एरर्स ओरिजिनेटिंग इन प्रायर पीरियड्स. तो प्रायर पीरियड्स में अगर कोई करेक्शंस हैं, उनको करेक्शन करने की वजह से भी कुछ एडजस्टमेंट आ जाती हैं, तो वो भी हम इसमें डील करेंगे गेन एंड लॉसेस में. व्हाट इज कंप्रीहेंसिव इनकम? यू नो वेरी वेल, एक ऑपरेटिंग इनकम है जो कि प्योर बिजनेस से आती है. इसके अलावा अदर इनकम के तमाम आइटम्स हम इंक्लूड कर देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड कंप्रीहेंसिव इनकम. लाइक items not included in net income, we can add the items in the net income, like non-recurring items and other items, other income, other expense, reported as a separate component of stockholders equity. हम इसको common stockholders equity जब लेंगे उसमें इसको as a separate component add करेंगे. And what are the things will be included in the comprehensive income? Foreign currency translation adjustments, it will be included in the comprehensive income. Unrealized holding gains and losses on the investment on the marketable securities will be added in the comprehensive income. And change to the stockholders equity resulting from additional minimum pension liability adjustments will be included in the comprehensive income. And unrealized gains and losses from derivative instruments, already we have discussed about the derivative instruments in previous lectures, तो वो भी हम ऐड कर देंगे in the comprehensive income of the business. तो we can add more items in the comprehensive income. What will be the items? Traditional profitability analysis utilizes net income. Items of accumulated other comprehensive income are excluded from the analysis. इसके अलावा जो भी आइटम्स होंगे वो हम एनालिसिस पर्पसेस के लिए comprehensive income से माइनस कर देंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, we will consider the supplemental analysis including other comprehensive incomes for return on assets, return on investment, return on total equity and return on common equity. तो हम इन चारों के पर्पसेस के लिए comprehensive income यूज कर सकते हैं. तो comprehensive income के बारे में आप समझ चुके होंगे. Dear students, now we will discuss the pro forma financial information. ये क्या है? Non generally accepted accounting principles
बेस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो कि एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूल्स को फॉलो ना कर रही हो डेटा, उसको हम कहते हैं प्रो फार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स रिलीज टाइम द अकॉर्ड with the release of generally accepted accounting principles financial results of the business, and Sarbanes-Oxley Act of 2002 records the following items. What are the items? Reconciling of pro forma data to generally accepted accounting principles, financial condition of the business, and results of the operation of the business, and pro forma data is not misleading or untrue. Interim reports. Already I have told you about the interim reports. If company will prepare the financial reports during the year, might be possible company can prepare the reports on quarter basis, basically 4 quarters in a year. The company can prepare 4 reports. That types of reports are not related to the basically legal requirements. Just company अपने लिए interim reports बना सकती है। तो क्या है जी, unaudited financial reports covering fiscal periods of less than 1 year। तो मैं आपको बता चुका हूँ less than 1 year से कम होंगी है और अपने लिए बनाएंगी और लीगल ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। interim reports are an integral part of the annual report, and interim report prepared quarterly. Information is disclosed in the annual report of the business. Security Exchange Commission requires quarterly information be filled on Form 10Q. फॉर्म 10Q है, उसके अंदर वो कहते हैं कि फॉर्म 10Q को फिल करें फॉर क्वार्टर बेसिस के लिए। प्रोड्यूस्ड क्विकली, रिलाई ऑन मोर एस्टिमेट्स, यानी कि ये जल्दी तैयार हो जाती है क्योंकि टाइम पीरियड कम है, ट्रांजैक्शंस कम है, तो इसलिए इसको तैयार करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो आखिर में एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सालाना बनाना भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटायरम रिपोर्ट्स प्रिपेयर की होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, now we will solve the various questions exercises. Without questions you cannot understand the ratios or financial statement analysis. First of all, we will read out the question. What is the question? Fluctuation in corporation recorded the following profit figures in 2008 and 2010, यानी कि 2008, 2009 and 2010. Net sales given है, costs and expenses given है, cost of product sold given है। तो डेटा आपके सामने है। We need to calculate the various equation ratios। कौन सी हैं जी? First requirement is compute the net profit margin for year 2008, 2009 and 2010। मेरे साथ रहिएगा। We will calculate the ratios one by one. First of all, we will calculate the net profit margin. Net profit margin formula is given: net income before minority share of earnings and non-recurring items divided by net sales। वेरी सिंपल फार्मूला, अभी तक आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो वी विल कैलकुलेट दी नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर द ईयर 2008, 9 and 10। वन बाय वन वी विल कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल 2008, then 2009,
9 देन 2010। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला हमने एक दफ़ा लिख लिया। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं जी क्या प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट इनकम इज गिवन 2020 फॉर ईयर 2010, right? Then 2470 for year 2009, then हम लिखेंगे for year 2008, that is 2480। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल भी गिवन है, वो भी ले लें क्वेश्चन से। सेल इज गिवन 30,500, देन 25,600 सेल फॉर ईयर 2009, then 22,900 sale is given for year 2008. Now you can basically calculate with the calculator। तो कैलकुलेटर अपना लें, उठाएं और इसको सिंपल डिवीजन है, डिवीजन करना शुरू कर दें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2008 की कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट इज गिवन 2480 डिवाइडेड बाय 22,900 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, दैट विल बी 10.83%। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर ईयर 2008 है। नाउ वी विल कैलकुलेट दी नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर ईयर 2009। इनकम इज गिवन 2470 डिवाइडेड बाय 25,600 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 9.65%। Now we can calculate for year 2010. Profit is given 2020 divided by 30,500 sales multiplied by 100, that will be 6.62%। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर ईयर 2010 था। तो हमने तीनों साल का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लिया। नाउ we will calculate another ratio. What is the ratio? Gross profit margin ratio। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लिख लें। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो एक एक साल का ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन में देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है या नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30,500 सेल लिखेंगे 2010 की, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड 12,600। 30,500 माइनस 12,600। तो कैलकुलेट कर लें, सिंपल कैलकुलेशन है। 30,500 माइनस 12,600, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 17,900। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले में आप पुट कर दें 17,900 डिवाइडेड बाय 30,500 मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 58.69% फॉर द ईयर 2010। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2010 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया, कॉस्ट में से को माइनस कर दिया, सेल में से तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो फार्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, डिवाइडेड बाय सेल्स किया, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया फॉर ईयर 2010,
Now we can calculate gross profit margin for year 2009. 2009 की सेल है जी हमारे पास 25,600 minus cost of product is given in question 10,300 minus 10,300. Gross profit will be 15,300. तो अब फार्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसको पुट कर दें. 15,300 divided by sale 25,600 multiplied by 100. Gross profit will be 59.77% for year 2009. Now we will calculate the gross profit margin for year 2008. सेम हम प्रोसीजर करेंगे. सेल्स आपकी है जी 22,900 फॉर ईयर 2008 और कॉस्ट हम देख लेते हैं. कॉस्ट इज गिवन 8,350. रिमेनिंग बैलेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट. Gross profit will be $14,550. Now we can put into the formula 14,550 divided by sales 22,900 multiplied by 100. That is 63.54%. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ट्रेंड क्या शो कर रहा है. ट्रेंड ये शो कर रहा है कि कंपेयर दैन टू 2008 आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता गया. 2008 में ग्रॉस प्रॉफिट 63% था जो कि रिड्यूस होकर 2009 में 59% हो गया और 2010 में रिड्यूस होकर 58% हो गया. दिस इज नॉट गुड साइन फॉर द बिजनेस. इट मीन्स कि योर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, तो यू नीड टू कंट्रोल द cost segment. Okay, now we will see another option. Describe the trend in profitability and pinpoint its causes. तो डिस्कस करेंगे हम. What is the discussion? Both net profit and gross profit margin have declined in 3 years. Already I have told you about this thing. A major factor has been the rising of cost of goods sold, which causes gross profit to fall. Selling expenses, journal expenses, research and development expenses have all increased in relation to net sales. तो ये भी इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो ये रीजन है आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के रिड्यूस होने की. नाउ वी विल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन is given in front of you. First of all, we will read out the question, then we will solve it. The clothes clutch, a retail clother, has had average sales of 400,000 for the last 5 years, 2010 to 2006. The firm total assets at the end of 2010 were 400,000. An internal staff cost analyst has prepared the following financial data from the annual reports of the firm. You have been hired as a consultant to help analyze the financial position of the business. तो ये डेटा आपके सामने है. ऑल रेशियोज आर गिवन. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? हैज द फर्म यूटिलाइज्ड इट्स टोटल एसेट्स effectively? Discuss the ability of the firm to generate sales based on total assets. Use DuPont analysis. DuPont analysis यूज करते हुए हमने ये बताना है कि कंपनी की एबिलिटी जो सेल को जनरेट करने की बेस्ड ऑन एसेट्स वो क्या है. तो
तो मेरे साथ रहें, हम इसको डू पॉइंट एनालिसिस का फार्मूला लिखेंगे. व्हाट इज द फार्मूला? यू रिमेंबर दैट? नॉर नहीं याद आपको? मेरे साथ रहिए, मैं लिखता हूं दोबारा और सीखने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटर्न ऑन टोटल assets is equal to net profit margin multiply by total assets turnover. ये डू पॉइंट का फार्मूला है. डेटा गिवन है क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है. यहां पे हम ईयर लिख लेंगे 2010, 2009, 2008, 2007, 2006. Now we can get data from the question. First of all, we need to find out the return on total assets. Return on total assets is given in the question. Return on total asset is given 9.4 in 2010. Okay, and 9.6, 2009 and 2008, same value. Then 10% and 10.7%. In 2006. Now we can get the amount of net profit margin, might be possible given in the question. Net profit margin is given for year 2010, that is 7.6%. For year 2009, 8.6, and for year 2008, 8.9. Dear students, now we will get the data for year 2007, that is 9.4%. And other option is 9.3% for year 2006. Now we can get data regarding total asset turnover from the question. अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर गिवन नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन कैलकुलेट इजीली, डोंट गेट वरी. कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? वन बाय वन मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिए. तो क्या करेंगे आप? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन वन बाय वन. तो फर्स्ट ईयर का 9.4 है डियर स्टूडेंट 2010, divided by 7.6, then 2009, 9.6 divided by 8.6, then 2008, 9.6 divided by 8.9, then 2007, 10% divided by 9.4, then 2006, 10.7 डिवाइडेड बाय 9.3. सबको डिवाइड कर लें तो ये आपका टोटल एसेट टर्नओवर आ जाएगा. 9.4 डिवाइडेड बाय 7.6, 1.24. यहाँ लिखते जाएं, 1.24 पर आ जाएगा टर्नओवर. देन 9.6 divided by 9.8.6, that will be 1.12. Then 9.6 divided by 8.9, that will be 1.08. Next is 10 divided by 9.4, that will be
1.06. So dear students, very simple calculation. And next is 10.7 divided by 9.3, that is 1.15. तो डियर स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन थी सिंपल सी, और अगर हम 7.6 मल्टीप्लाई बाय 1.24 करेंगे तो रिजल्ट विल बी दी 9.4. अगर हम 8.6 मल्टीप्लाई बाय 1.12 करेंगे तो रिजल्ट विल बी दी 9.6. तो हम इस यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसेट टर्नओवर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट रिटर्न ऑन एसेट्स. तो ये हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन थी. तो डियर स्टूडेंट, यही उसका क्वेश्चन था कि ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को यूज़ करें और हमें बताएं कि कंपनी की पोजीशन क्या है. नाउ वी विल डिस्कस another practical exercise. What is the exercise? First of all, we will read the question. Rexel company recently had a fire in a store. बात समझ गए होंगे, उनके स्टोर में आग लग गई. Management must determine the inventory loss for the insurance company. Since the firm did not have perpetual inventory for the insurance company has suggested that it might accept an estimate using the gross profit test. The beginning inventory as determined from the last financial statements was $10,000. Purchase in price indicates purchases of $100,000. Credit and cash sales during the period were $120,000 for the company. Last year, the gross profit for the firm was 40%, which was also the industry average. What is the requirement? कुछ डेटा गिवन है, यानी कि आपका परचेजेस गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, और आपके जो है क्रेडिट और कैश सेल्स गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% प्रीवियस ईयर का गिवन है. तो वी नीड टू कैलकुलेट दी बेस्ड ऑन दिस डेटा एस्टिमेट दी इन्वेंट्री लॉस. वी नीड टू फाइंड आउट दी इन्वेंट्री लॉस. मेरे साथ रहिए, फाइंड आउट करने की इसको कोशिश करते हैं. कंपटीशन ऑफ inventory loss. First of all, we will add the sales. Sale is given in question, if you can see, that is $120,000. Gross profit is given 40% of sales. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे 40% ऑफ सेल्स, और सेल्स हमारे पास डेफिनेटली गिवन है. तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सेल्स आपकी 120,000 है, इसका 40% ले लें तो ये आ जाएगा जी $48,000. इट मीन्स इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% तो कॉस्ट मस्ट बी दी 60%, because 40% मीन कि 40% ऑफ द सेल. तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो सेल का ही होगा ना, तो रिमेनिंग 60% विल बी दी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.40. 1 क्या है, अगर सेल है तो 0.40 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी कॉल्ड 0.60 एज ए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो डियर स्टूडेंट 0.60 मीन्स 60%. 0.60 multiply by 100, that will be 60%. Now we can calculate the cost. 60% of sales 120,000, that will be $72,000. तो कॉस्ट हमारी 72,000 की आ जाएगी. तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इसको. पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा,
then cost of sales, that is 60% of 120,000, that will be 72,000. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी छोटी सी कैलकुलेशन थी और अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं टू बेसिकली फाइंड आउट द इन्वेंटरी लॉस ऑफ द बिजनेस. देन वी विल कैलकुलेट द बिगिनिंग इन्वेंटरी. Beginning inventory is given in question, if you can see, that is $10,000. Okay, plus purchases are also given, purchases 100,000. हम टोटल कर लेंगे, इसको कहेंगे टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल for sale, that will be 110,000. इसमें से अगर आपको याद हो तो माइनस एंडिंग इन्वेंट्री होती है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है. तो रिजल्ट आता है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी है बता सकते हैं प्लीज टेल मी. कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज $72,000. तो अब क्या करें कि 110,000 में से 72,000 को माइनस कर दें तो हमारे पास इन्वेंट्री लॉस आ जाएगा. 110,000 माइनस 72,000, लॉस विल बी 38,000. यही बेसिकली फाइंड आउट करना था कि कंपनी को कितना लॉस हुआ. एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, दैट इज $38,000. नाउ यू कैन क्लेम फ्रॉम दी इंश्योरेंस कंपनी $38,000. बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी. व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? इफ द इंडस्ट्री एवरेज क्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 50%, कंडीशन चेंज होगी. पहले ग्रॉस प्रॉफिट 40% था, नाउ ग्रॉस प्रॉफिट 50% है. व्हाई माइट द इंश्योरेंस कंपनी बी लेयरली ऑफ द एस्टिमेटेड लॉस? तो अब कंपनी एस्टिमेटेड लॉस कैसे कैलकुलेट करेगी? नाउ वी नीड टू कैलकुलेट अगेन. देखिएगा, कंपटीशन ऑफ इन्वेंट्री लॉस if gross profit margin is 50%. Now we will calculate the inventory loss if the gross profit is 50%. तो कैलकुलेशन पीछे वाली सारी सेम होगी, थोड़ा सा चेंज आएगा. देखिएगा, सेल्स 120,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. Now gross profit will be 50% of sales, that will be $60,000, and cost of sales automatically will reduce. Now it will be 50% also of sales and 60,000. Now we can calculate the basically loss. Beginning inventory, that is constant $10,000 plus purchases also constant 100,000 plus करेंगे तो 110,000, that is inventory available for sale minus ending inventory. तो रिजल्ट विल बी दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है जी 60,000.
अब हम क्या करेंगे, 110,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे, that will be 50,000. So dear students, now loss will be $50,000 in case of when gross profit will be 50%. So now in this situation we can claim $50,000 from the insurance company. If gross profit were high, the loss would be higher. यानी ग्रॉस प्रॉफिट हाई होगा तो लॉस भी हाई होगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डिस्कस अनदर क्वेश्चन. मेरे साथ रहिएगा. अनदर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. DH Muller Company presented the following income statement in its 2004 annual report. 2002, 2003 और 4 का डेटा गिवन है. What are the requirements? ये भी क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन कंटिन्यूड है. हम रिक्वायरमेंट पे डायरेक्टली हम आगे जंप करके. फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दिस डेटा कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर 2004, 2003 एंड 2002. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन. मेरे साथ रहिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट margin. Is equal to net income before minority share of earnings and non-recurring items divided by net sales. तो year 2004, 2003 and 2002. तो डेटा हम क्वेश्चन से लेंगे. क्वेश्चन में वापस चलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेट अर्निंग गिवन है. $20,070 फॉर ईयर 2004 और इसमें से हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्सेस. तो लिखें $20,070 माइनस 8,028 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. नेट सेल भी देख लें क्वेश्चन से. नेट सेल्स इज गिवन $297,580. सबसे पहले सबके अमाउंट्स लिख लेते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट इजीली. वापस चलते हैं. हमारे पास इनकम 2003 की गिवन है 16,660 माइनस 6,830 इनकम टैक्सेस divided by net sales. Net sales are given 256,360 for year 2002. Net earning is 15,380 6,229 divided by net sales. Net sales given है 242,150 तो डियर स्टूडेंट्स, सारी अमाउंट्स हमने लिख ली. कैलकुलेशन बहुत आसान है, मेरे साथ रहिएगा. 2070 माइनस
8028 divided by 297580 multiply by 100, that will be 4.05%. Now we can calculate for year 2003. 16,660 minus 6830 divided by 256360 multiply by 100, that will be 3.83%. Next, 15380 minus 6229 divided by 242150 multiply by 100, that is 3.78%. So dear students, you can see trend goes upward कि आपकी जो परसेंटेज है नेट प्रॉफिट मार्जिन की वो इंक्रीज होती जा रही है. 4 में 4% है. दैट इज गुड साइन फॉर दी कंपनी. नाउ वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स. डियर स्टूडेंट्स, वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल we will add up the formula. Formula क्या है जी? Net income before minority share of earnings and non-recurring items divided by average total एसेट्स. तो डी स्टूडेंट्स, डेटा हम क्वेश्चन से लेंगे. तो नेट इनकम ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है जी? हर एक की गिवन है 20070 माइनस 8028 डिवाइडेड बाय, हम अभी एवरेज टोटल एसेट्स लेंगे, इसे दूसरे के लिए लिख लेते हैं 16660 माइनस 6830 15380 माइनस 6229. ये प्रीवियस रेशियो वाला डेटा आपका रिपीट हो गया. नाउ वी नीड टू टेक दी एवरेज टोटल एसेट फ्रॉम दी क्वेश्चन, दैट इज you can see 145,760. For year 2003, 137,000 and 136,000 for year 2002. ये स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लें जल्दी से. -8028 divided by 145,760 multiply by 100, that is 8.26%. दूसरी कैलकुलेट कर लें 16660 माइनस 6830 divided by 137,000 multiply by 100, 7.18%. तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से कैलकुलेट कर लें, आपकी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है. तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं. रेशियोज बार बार रिपीट हो रही हैं, कोई नई रेशियो नहीं है. 15380 माइनस 6229 डिवाइडेड बाई 136,000 multiply by 100, that will be 6.73%. Now you can see trend goes upward. Again you can see 2004 में रिटर्न ऑन एसेट की जो रेशियो है वो इंक्रीज हो गई है. दिस इज गुड साइन फॉर द बिजनेस. यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो. व्हाट इज द रेशियो डियर स्टूडेंट्स? टोटल एसेट टर्नओवर. टोटल एसेट्स टर्नओवर. फार्मूला क्या होगा? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों चीजें
आपकी गिवन है प्रीवियस रेशियोज में, आप वहां से भी ले सकते हैं और क्वेश्चन से भी ले सकते हैं। देखते हैं जी क्या अमाउंट्स हैं। नेट सेल्स आपकी हैं 20,070 फॉर 2004, dear students, you can take the amounts from the basically data. Sales are given 297,580, for year 2004। इसी तरह हम दूसरे साल की ले लें क्वेश्चन से। सेल्स आर गिवन 256,360, नेक्स्ट हरी अप 242,150, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, वो प्रीवियस में दिए हुए हैं 145,760, नेक्स्ट ईयर की आप देख लें 137,000, देन 136,000। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। 297,580 डिवाइडेड बाय 145,760, 2.04 टाइम्स। नेक्स्ट 256,360 divided by 137,000, that is 1.87 times. Then 242,150 divided by 136,000, that is 1.78 times. So dear students, again trend goes up in case of total asset turnover. Total asset turnover means क्या आपके सेल में एसेट्स की कन्वर्जन क्या है, यानी कि कितनी दफा सेल हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशियो। व्हाट इज द रेशियो? अगेन दे रिक्वायर्ड डुपॉन्ट एनालिसिस। अगर आपको याद हो डुपॉन्ट एनालिसिस फार्मूला क्या था? डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट डुपॉन्ट एनालिसिस। व्हाट इज द फार्मूला? रिटर्न ऑन एसेट्स is equal to net profit margin multiply by total assets turnover। तो रिटर्न ऑन एसेट्स हमारे पास गिवन है, रेशियो में हमने कैलकुलेट किए, और टोटल एसेट टर्नओवर भी गिवन है, आपके सामने है 2.04, then 1.87, then 1.78। तो अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ले सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट इज गिवन 8.26, 7.18, then 6.73, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप ले सकते हैं, वो क्या जी 4.05, 3.84 एंड 3.78। तो डियर स्टूडेंट्स, 2.04 मल्टीप्लाई बाय 4.05, तो z विल बी 8.26। इस तरह हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड डुपॉन्ट एनालिसिस। नाउ वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो इज ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन। जल्दी से कर लें। फार्मूला विल बी दी ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तमाम सालों की आप 1 बाय 1 कर लें। ऑपरेटिंग इनकम 2004 की 26,380 और नेट सेल्स 297,580,
नेक्स्ट ईयर की 22,860 डिवाइडेड बाय 256,360 और नेक्स्ट ईयर की 20,180 ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय 242,150। सबको आप डिवाइड करने बहुत आसान है। फर्स्ट का आएगी 8.86%, देन 8.92%, देन 8.33%। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन। नाउ वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट इज रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स। रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग assets is equal to operating income divided by average operating assets। तो भी हर साल की गिवन आप डेटा वहां से ले सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम अभी हमने लिखी है, पिछले वाली स्लाइड्स आप देख लें। पहले की है $26,380 divided by 89,800 plus 45,850। कैलकुलेट कर लें आप। That will be 19.45%। तो क्या किया डी स्टूडेंट्स, दोनों को प्लस करके तो आपने 26,380 को उस पर डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर की भी कैलकुलेट कर लें आप। 22,860 डिवाइडेड बाय 84,500 प्लस 40,300 और रिजल्ट आएगा 28.32%। इसी तरह हम नेक्स्ट ईयर की भी कैलकुलेट कर लेंगे। ऑपरेटिंग इनकम इज गिवन 20,180 डिवाइडेड बाय 83,100 प्लस 39,800 और रिजल्ट विल बी 16.4%। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कैलकुलेटेड दी बेसिकली रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स। नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो। जल्दी करें, आपकी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एसेट्स टर्नओवर। ऑपरेटिंग एसेट्स टर्नओवर, तो फार्मूला बता सकते हैं, बहुत आसान है। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। तो प्रीवियस रेशियो में सब कुछ गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले की नेट सेल्स है 297,580 डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स आपके सामने 89,800 प्लस 45,850 डिवाइड कर लें। देन सेल है जी 256,360 डिवाइडेड बाय 84,500 प्लस 40,300। नेक्स्ट है जी 242,150 इज सेल्स और आपके एसेट्स हैं 83,100 प्लस 39,800। रिजल्ट विल बी 2.19 टाइम्स फॉर द फर्स्ट, 2.05 एंड 1.97 टाइम्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी ऑपरेटिंग एसेट्स टर्नओवर थी। बहुत आसान है, आपने देख लिया होगा। जस्ट फार्मूला आपको आना चाहिए, अमाउंट भी गिवन है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज डू बॉन्ड एनालिसिस। इसी के ऊपर आपने डू बॉन्ड एनालिसिस करना है, वो भी हम कर लेंगे, सिंपल है।
अगर आपको याद हो फार्मूला भी हमने किया था, फार्मूला होगा रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि ऑपरेटिंग एसेट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अमाउंट कैलकुलेट की हुई है, वहां से जस्ट आपने अमाउंट उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, तो रिजल्ट आपका आपके सामने होगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। वेरी सिंपल, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो डियर स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी होगा। हाँ जी, 91,580 for year 2004, then 80060, then 76,180 और सबको आपने सेल से डिवाइड कर देना है। सेल्स गिवन है 297,580 और 2003 की भी गिवन है 256,360 और नेक्स्ट की भी गिवन है 242,150। तो डिवाइड कर दें 91,580 डिवाइडेड बाय 297,580 30.78%। नेक्स्ट 80060 डिवाइडेड बाय 256,360, that will be 31.2%. Next 76,180 divided by 242,150, that is 31.45%. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेंड भी देखा। व्हाट इज द लास्ट रिक्वायरमेंट? डिस्कस योर फाइंडिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, now we will discuss the findings. What are the findings of the question? No, dear students, now we will discuss the findings. Net profit margin and total asset turnover both improved. This resulted in a substantial improvement to return on assets. Operating income margin declined slightly in 2003 after a substantial improvement in 2002. Operating asset turnover improved each year. Now you can see the result of the improvement in operating income margin and operating asset turnover was a substantial improvement in return on operating assets, and gross profit margin declined slightly each year. Overall profitability improved substantially over the 3 years period. So dear students, today we have discussed various topics related to profitability ratios, return on investment, we have discussed return on total equity, return on common equity, and we have discussed gross profit margin and the relationship between profitability ratios of the business, and we have discussed the interim reports, comprehensive income, and we have solved various practical problems. तो उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ आ गई होंगी और इस टॉपिक पे आपको ग्रेप हासिल हो गई होगी। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे और उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर की आप तैयारी करके आएंगे और आप प्रैक्टिस भी इस पे करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।